Hello, बड़े Madhu. खतरनाक नाम है अभी। Okay, so as mentioned by sir, we have a program named as Disha. So during the website tour, आपने देखा होगा that we have a program named Disha. So basically, what is Disha? The ins and out of Disha, why we have launched this program. The Yes. idea behind this. पहले वेलकम सुश्री जी, सुश्री फ्रॉम आवर ऑटोकैड टीम एंड फ्रॉम भुवनेश्वर. वेलकम एंड हैप्पी होली. Happy Holi, sir. Happy Holi, everyone. हैप्पी होली. प्लीज कंटिन्यू सिद्धि जी. Okay. So in this Disha platform, basic motto is to target the freshers. This platform of Disha is is only for freshers for the year 2021 and 22. The freshers who have passed out in the year 2021 and 2022, उनके लिए ही ये दिशा platform is eligible. Like the freshers who are passed out in these 2 years are eligible for this Disha program. Clear till here? Yes. Okay. Now move forward. The basic idea of this Disha platform is that the first thing for the freshers, we are providing with the internships and the on-the-job trainings. Now, keeping aside this internship program, let's focus only on the on-the-job trainings. Now, why on-the-job trainings is because fresher जिन लोगों ने उनका graduation complete किया है, obviously they will not go for internship. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम जयप्रकाश फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग टीम. और वेलकम. तेरा नाम से पूछ बोलना है, कुछ और बोल के बुलाना है तुझे श्वेता. Hello. अरे बड़े बनठन के आई है तू आज. Happy Holi, sir. Happy Holi. हैप्पी होली. Shweta is our previous team member. Now she taken care of UPH clinic in Noida. तूने इतना बन ठन के गई है. पार्टी स्टार्ट हो गया तेरा? नहीं, अभी नहीं हुआ. अभी नहीं हुआ. ओके ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड हैप्पी होली. तूने कलरफुल रेनबो कलर का ड्रेस भी पहन के आ गई होली में. ओके लेट्स स्टार्ट. सिद्धि जी कंटिन्यू. Okay, so I was talking about the on-the-job trainings. So now basically मुझे एक idea clear करने दो about the on-the-job trainings. The name itself suggests about the details of this profile. That is why on-the-job trainings we are providing. Why not only trainings? So the basic difference between training and on-the-job trainings is that in the training platform there is a classroom training wherein candidates को hands on experience नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो वो जो प्रोजेक्ट्स उनके लैब में या फिर उनके कॉलेज में रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हीं के ऊपर वो काम करते हैं. एंड द डिफरेंस बिटवीन ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज दैट ऑन द जॉब ट्रेनिंग में भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जिस प्रोजेक्ट्स पे वो काम करते हैं वो एक्चुअल लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं एग्जिस्टिंग कंपनी के. तो इसका बेनिफिट कैंडिडेट को ये होता है कि उनको डायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है कि कॉर्पोरेट वर्किंग कल्चर का. प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो हैव गेट एन एक्सपोजर की टीम बिल्डिंग या फिर टीम वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग मॉड्यूल पे होते हैं मैक्सिमम एट द मैक्सिमम हमारे प्रोजेक्ट टीम में 5 to 6 पीपल होते हैं. इन कॉलेजेस ऑल्सो राइट, जो मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो मैक्सिमम 6 to 7 पीपल आर देयर. बट when we are working in a corporate culture, वहाँ पे more than 15 to 20 people are working on a single project, and every person who is handling that project, सबका सेक्टर या फिर सबका जो सेक्शन जिस पे वो काम करते हैं वो अलग अलग होता है. And that is the reason every person who is included in that project, उनको सबके साथ they have to maintain a good relation, because
they are working simultaneously for the same project. So that is the reason I mentioned during the entire duration of on the job training, the candidate will directly get an exposure to the working culture of a company जिसपे उसे he has to handle a team or he has to work with the team. First thing. Second, It's like an internship, na? it's not like an internship. Internship में हम PPOs provide करते हैं. We are not giving them the placement assurance or the placement guarantee thing. On the job trainings में हम लोग उनको 100% placement guarantee का offer देते हैं, which is written on paper. But this is not the case with the internships. We just provide them with the pre-placement offers in internship program. Okay. Now, apart from this, the third benefit that the candidate will be getting during this on-the-job training module is that उनको तो obviously work culture के details समझ में आ जाएंगे. Working ethics, working etiquettes, obviously these two are also most important. They will understand these things also. Apart from this, they will be also getting the stipend. Now, why stipend and these things? Because the candidate जो on the job training के लिए enroll किया है, वो live projects पे काम कर रहा है, which means he is the part of the team. Which team? The company's core team. So indirectly or directly, he works as a trainee employee with the company. So for the performance or because he is working on the company's projects, उनको stipend मिलता है और उनको stipend company ही देती है. Now here there are two different kinds of stipends. That is the fixed stipend and the variable stipend. जो fixed stipend रहता है वो company decide करती है the amount of fixed stipend. And the amount of variable stipend depends upon their performance, how they perform while and during the entire duration of their on the job trainings. Apart from this, उनको जो weekly या फिर जो every week they might work on different assignments, or after every 15 days they might work on different assignments, the candidates. तो ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ देयर असाइनमेंट्स उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनको फिक्स वेरिएबल स्टाइपेंड्स मिलता है. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एनरोलिंग इन द ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम. अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स जो रहते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर ग्रेजुएशन, उनका माइंडसेट ऐसे होता है कि मुझे एक्सपीरियंस भी गेन करना है और साइमल्टेनियसली आई वांट टू परस्यू माय पीजी एज वेल. So we here in this Disha platform, we are assisting them, or you can say we are helping them for their postgraduate programs as well. And this is how, let me explain it to you. I hope everyone has understood about the on-the-job trainings. Right? Yes, ma'am. Now, after the entire duration of their on-the-job trainings, now on-the-job trainings, it may differ from profile to profile. The duration of on-the-job training. Some profiles का duration होता है 9 months, some profile का duration होता है 6 months. So after the entire completion of their on-the-job trainings, now it's our responsibility to enroll the candidate if he wants to pursue his post-graduation in a good university or in a good college. So we are here having tie-ups with various colleges and various universities abroad as well. So for example, we are now having colleges like Symbiosis, we are having V schools. These schools are for the management ones, those who want to pursue MBA. It's not necessary that सबको MBA ही करना है. For example, अगर engineering candidates को बीटेक के बाद अगर एमटेक करना है, देन वी ऑल्सो प्रोवाइड देम अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट. इससे उनका बेनिफिट क्या होगा, दैट ड्यूरिंग देयर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन इज मिनिमम ऑफ 2 years, राइट. उनका पोस्ट ग्रेजुएशन चलता रहेगा थ्रू द ऑनलाइन मोड, प्लस साइमल्टेनियसली उनका जो जॉब है, that we are giving them 100% guarantee about their job placement, वो भी उनका
that will go on simultaneously, which means after the entire completion of their post graduation, now the candidate is ready with an experience of 2 years plus उन्होंने उनका post graduation भी complete किया है. So there is no any gap between his bachelor's degree and master's degree. The candidate has equipped his entire duration after the completion of his graduation. So वो जब market में जाएगा, he will be ready, and the companies will obviously go and target such candidates क्योंकि उनका already experience रहा है previously. Experience means the working experience of a company, right? ऐसा नहीं है कि we are giving them with any local institutes or something. We are providing them with a good package and a good profile working in a good company. So this is how the entire Disha program is. I hope I am clear and you have understood everything. यस मैम, बिल्कुल क्लियर है। बट एक चीज आपने देखा, सिर्फ शांतनु जी नहीं, हम सब भी शांति से आपकी बातें सुनते हैं। हाँ। बीच में किसी ने नहीं टोका। ओके, तो जो इन्होंने बोला बहुत ही डिटेल्स में बताया, बहुत सिंपल वे पे मैं दिशा प्रोग्राम ने क्या डिजाइन किया है वो आपको बता दूं, आपको बहुत सिंपल वे पे समझ आ जाएगा। उससे पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा कंटिन्यूअसली। ओके, सो बेसिकली दिशा प्रोग्राम है क्या और क्यों बनाया गया। सबसे पहले बता दूं कि दिशा प्रोग्राम जो हमने डिजाइन किया है, जो प्लान किया है, दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर graduate fresher. For this year we are allow 2021 pass out and 22 pass out. 22 by default, this is the current year. From next year onwards we are only allowing only 2023 pass out, यानी current year pass out को ही allow करेंगे this दिशा program। Why we are plan like this? अगर आप सही से देखोगे, बेचारे ग्रेजुएट फ्रेशर ओनली कैंडिडेट जो सबसे ज्यादा जॉब मार्केट में स्ट्रगल करता है। क्यों? क्योंकि जब वो बाहर जॉब इंटरव्यू देने जाता है, उनके साथ एक पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी देता है इंटरव्यू, उनके साथ एक एमबीए वाला भी देते हैं, और कॉलेज के अंदर कैंपस ड्राइव थोड़ा बहुत कम होने लग गए, ग्रेजुएट में उतनी ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलता है। तो देयर इज द सो मेनी थिंग्स। इवन दूसरा जो प्रॉब्लम है, एक ग्रेजुएट फ्रेशर्स को बहुत सारे समय ये समझ नहीं आता है कि वो कौन सी प्रोफाइल में अपनी कैरियर चूज करे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनटिल अनलेस उसने प्रोफाइल नहीं चूज किया तो वो गलत सब्जेक्ट पे एमबीए या मास्टर कर लेंगे, और मास्टर करने के बाद ही फिर वो पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहेंगे। ये ऑलरेडी आपको बहुत सारे ये वाला एग्जाम्पल आपको मार्केट में दिखे। So basically since 2012 से जब मैं एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर काम कर रहा था, उस टाइम से मैंने जो नोटिस किया, एक ग्रेजुएट होने के बाद एक जो ग्रेजुएट बच्चा, जस्ट 21 इयर्स पास आउट ग्रेजुएट बच्चा जो निकलता है, उनके दिमाग पे दो सपने होते हैं। एक जॉब मिल जाए, जहाँ से कुछ पैसा आने लगे, बंदा बड़ा ही खुश हो जाता है, और उनको कुछ अच्छे जगह से हायर स्टडी करने लगे। ये दोनों उनकी सपना होता है। एंड ट्रस्ट मी, जितना दिन जा रहा है ये दोनों सपना अपने अपने चैलेंजेस के साथ आता है। आप कंपनी में जॉब लेने जा रहे हो, आप हो ग्रेजुएट, बोल रहे हो मेरे को एचआर बननी है, आपको दे रहा है टेलीकॉलर का जॉब, आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या हादसा हो गया आपके साथ। 3 महीने बाद आपको समझ आया, फिर आप जीरो से स्टार्ट करते हो, राइट। ये सारे बहुत दिखने को मिलेगा आप लोगों को। दूसरा, बंदे ने यूनिवर्सिटी प्लान करता है, ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी, एंड बहुत सारे टाइम क्या होता है, बंदे ने यूनिवर्सिटी प्लान कर लेते हैं, बाद में जाके पता चलता है उसको जिस प्रोफाइल में स्पेशलाइजेशन करना था उसके यूनिवर्सिटी में तो वो है ही नहीं। फिर यूनिवर्सिटी वालों ने जो बोलते हैं वो स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, जो बाद में जाके काम नहीं होता है। हम लोग इंटरव्यू लेते टाइम ऐसे हजारों बच्चे मिलता है जिसका एमबीए कंप्लीट हो गया, हमने पूछते हैं ये वाला क्यों लिया, सर वो कॉलेज ने बोला था, वो था नहीं ना। द रीजन बिहाइंड, जब उसने एडमिशन लिया उस टाइम उसने चूज नहीं किया कौन सी प्रोफाइल में उनको स्पेशलाइजेशन करनी है। अगर प्रोफाइल चूज नहीं है, स्पेशलाइजेशन चूज नहीं है, तो कॉलेज भी चूज नहीं किया। प्लस अगर अच्छे कॉलेज चूज करने जाता है
उस टाइम पॉकेट साथ नहीं देता है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है। भैया पापा ने बोलता है नहीं भैया अभी इतना नहीं दे पाएंगे, देयर आर सो मेनी चैलेंजेस होते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस भी होते हैं, देयर आर सो मेनी चैलेंजेस होते हैं, एंड ये रियलिटी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ किसी के पापा ने नहीं दिया है, बिल्कुल देते हैं, बट ये सेट ऑफ चैलेंजेस है फाइनेंशियल भी। सो एक ग्रेजुएट जैसे ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सबसे पहले उनके पास ये दो रास्ता आता है, दोनों रास्ता अपने अपने चैलेंजेस के साथ। जब हमने पिछले कई सालों से इसको नोटिस करते गए, देखते गए, और पीछे हमने दिशा को टेस्ट ड्राइव भी किया था, दिल्ली में भी किया था, सक्सेसफुली टेस्ट ड्राइव हुआ था, उड़ीसा में भी हमने कुछ किया था काम। तो हमने देखा कि इस प्रोग्राम के थ्रू जो बच्चे निकल रहे हैं ना, उसके बाद किसी भी कंपनी से कोई कंप्लेन नहीं आ रहा है कि बच्चे 3 महीने में छोड़ दिया या 2 महीने में छोड़ दिया, दे स्टे देयर, और इवन उसके बाद उसको रैपिडली ग्रोथ भी हो रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट, हमारे पास एक इनकरेज हुआ, हमें कॉन्फिडेंस मिला कि इसको एक पूरी प्रोग्राम डिजाइन करके एक पूरी प्रॉपर्टी बनाना। जैसे सैंट्रो से हुंडई बिकम हुंडई बिकॉज ऑफ सैंट्रो, सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स वी प्लान फॉर दिशा, कि एक ग्रेजुएट मतलब धीरे धीरे हम इनको इस जगह पे लेके जाना चाहते हैं कि एक ग्रेजुएट उनकी फाइनल सेमिस्टर के आके दे प्लान फॉर आवर दिशा एंड दे अपेयर फॉर आवर एप्टीट्यूड टेस्ट, because this is the exclusive property for a graduate. इसमें और कोई अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी 2023 में जाके इसमें 2022 वाला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 2023 वाला ही है। एंड इस प्रोग्राम में we take care both the dream, higher study and job. How it's operated, how its operations कैसे है, इसका मैकेनिज्म कैसे है, बहुत सिंपल। पहले बच्चा यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, सिलेक्ट होने के बाद यस यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, बच्चा सिलेक्ट होंगे, सिलेक्ट होने के बाद ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद जो प्रोफाइल उन्होंने चूज किया या हमारे काउंसलिंग के थ्रू जो प्रोफाइल उनको हमने सजेस्ट करेंगे, उस प्रोफाइल में वो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग करेंगे। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मतलब लाइव ट्रेनिंग एंड ऑनलाइन एम्प्लॉय, ट्रेनिंग एम्प्लॉय की तरह 6 मंथ काम करते जाएंगे। ड्यूरिंग 6 मंथ जो वो काम करेंगे उसमें उनको स्टाइपेंड भी मिलेंगे, साथ में स्टाइपेंड के साथ उनको एक स्कॉलरशिप भी मिलता जाएगा। वो स्कॉलरशिप मैं बाद में बताऊंगा कैसे आएगा, स्टाइपेंड भी मिलता जाएगा, और जैसे ही उनका 6 मंथ खत्म हुआ, with immediate effect they get their final placement letter. Immediate effect means मंडे को अगर वर्कशॉप खत्म हुआ, ट्यूसडे से वो फाइनल प्लेसमेंट लेटर उनके हाथ में होगा और दे स्टार्ट देयर एम्प्लॉयमेंट लाइन। तो पहला सपना तो पूरा हो गया कि भैया मेरे को स्किल्ड सीख गया, जिस प्रोफाइल में जाना था वो प्रोफाइल को प्रॉपर स्किल्ड हुआ और मेरे को जॉब लग गया। तो एक ग्रेजुएट का फर्स्ट डिमांड इज फुलफिल। What is the second demand? The second demand is higher study. Yes, it's required. Higher study means always MBA नहीं होता है। Higher study में हम आज के दिन में स्पेशलाइजेशंस की जमाना है, तो हम स्पेशल सब्जेक्ट वाइज प्रोग्राम पे भी डिप्लोमा या एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम करने के लिए लोगों को गाइडेंस देते हैं। So then that particular time we recommend them for higher studies. Not only recommend them, we are enrolled them with our लाइन अप यूनिवर्सिटीज। अब ये लाइन अप यूनिवर्सिटी के लिए भी हम उनके साथ बैठते हैं और उनके साथ डिस्कस करते हैं। लाइन अप यूनिवर्सिटी में हम अभी किसका नाम ले सकते हैं? डॉक्टर DY पाटिल पुणे, डॉक्टर DY पाटिल मुंबई, नार्सिमुजी यूनिवर्सिटी पुणे, सिम्बोसिस, IBM, विलिंकर मुंबई, सुभारती, जयपुर नेशनल। सो दीज आर द यूनिवर्सिटी जिनके साथ हम काम करते हैं और जिनकी ऑनलाइन डिग्री, हमने इन सारी यूनिवर्सिटी का नाम क्यों लिया? क्योंकि इनका ऑनलाइन डिग्री जो आता है दैट इज इक्विवेलेंट टू रेगुलर डिग्री एंड दे आर ऑल ऑथराइज्ड बाय DEB, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। आप लोग अगर UGC में जाओगे, UGC के वेबसाइट में जाओगे तो वहां पर आपको DEB दिखेगा, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। DEB इज अ स्टैंड अलोन ऑथेंटिकल बॉडी जो डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन कोर्सेस और यूनिवर्सिटी को ऑथराइज देता है। DEB इज लाइक अ RBI फॉर ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज, राइट? सो दिस आर द यूनिवर्सिटी जो जिनका नाम लिया, इनका डिग्री इज इक्विवेलेंट टू रेगुलर डिग्री। दूसरी बेनिफिट क्या है? इनका डिग्री आप हमारे स्टूडेंट्स बाद में अगर कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करें तो इसका डिग्री वहां पर वो लगा सकते हैं, इट्स एप्लीकेबल। एंड
कभी उनको बाहर जॉब करने की मौका मिले तो इन कॉलेजेस की ऑनलाइन डिग्री जॉब वीजा में अप्रूव्ड है। ये बहुत चेक करना पड़ता है जॉब वीजा में कौन सी डिग्री अप्रूव्ड है और कौन सी सिर्फ महज एक डिग्री है। सो दीज आर द ऑनलाइन डिग्री है जहां पर हम उनको आइदर एमबीए और जरूरत पड़े तो स्पेशलाइजेशंस के ऊपर एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा या एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स को रेकमेंड करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, समवन प्लान फॉर डेटा एनालिसिस। सो जरूरी नहीं है उनको एमबीए करनी है, हम उनको डेटा साइंस मशीन लर्निंग का भी प्रोग्राम बोल सकते हैं कि भैया आप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग का एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा करना है, जरूरी नहीं है आप एमबीए ही करना है। सो इसी हिसाब से ये जो 6 मंथ वो हमारे साथ रहेंगे, हमारे मेंटोरशिप में रहेंगे, यहीं पे इनकी टोटल माइंड ग्रूमिंग, टोटल डिसीजन मेकिंग पावर यहीं पे इनका तैयार हो, और उसी हिसाब से डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग ऑन देयर वीकनेस, डिपेंडिंग ऑन देयर level of interest about the profile, we decide their career with the discussions, right? And we enroll them for MBA. चलो अभी फिलहाल हम MBA को ले रहे हैं to easy understanding. We enroll them for MBA. At the time of enrollment of MBA, they are eligible. Again, I repeat my word. They are eligible up to 100% scholarship. This is the sweetness or most unique things of our DISA program. आप लोग बोलोगे 100% स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा? अभी कुछ देर पहले बोला था कि जो बच्चों ने 6 मंथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग करेंगे, उस ट्रेनिंग में उनको एक असाइन बेस्ड रेटिंग मिलेगा, दैट्स रेटिंग इज स्कॉलरशिप। एवरी असाइनमेंट आउट ऑफ 10 उनको रेटिंग मिलेगा। जो 6 मंथ उन्होंने असाइनमेंट करेंगे, कोई 2 हफ्ते का, कोई 3 हफ्ते का, हर असाइनमेंट का आउट ऑफ 10 रेटिंग मिलेगा। वो आउट ऑफ 10 रेटिंग कैसे मिलेगा? कितना उस असाइनमेंट पे उन्होंने पूरा किया। इसका मतलब ये रहा, कैंडिडेट के पास ओपन विंडो है टू ग्रैब अप टू 100% स्कॉलरशिप। वी आर नॉट कंट्रोल देयर स्कॉलरशिप, दे कंट्रोल देयर स्कॉलरशिप। इफ दे परफॉर्म वेल, if they are 100% time during this industrial workshop, they are eligible for 100% scholarship. It means उनका MBA free of cost, right? So it's rating के थ्रू उनको scholarship मिलता है। Let's take an example, किसी को 50% scholarship और उनको हमने डॉक्टर DY पाटिल में MBA के लिए recommend किया और enrolled किया। तो डॉक्टर DY पाटिल MBA fees is near about 2 lakh rupees. So 50% स्कॉलरशिप मिला, मतलब हमारे रिकमेंडेड कैंडिडेट के लिए एमबीए फीस कितना हो गया? 1 लाख रुपीस। क्लियर? अब ये जो 1 लाख रुपए उनका एमबीए फीस हुआ, ये 1 लाख भी उनको ना तो सेमिस्टर वाइज देना है, ना इकट्ठे देना है, ना ईयरली देना है। बिकॉज ऑफ द आवर रिकमेंडेड कंपनी कैंडिडेट, वो 24 EMI में ये 1 लाख रुपए दे सकता है यूनिवर्सिटी। 24 EMI। सो आप पूरी चीज को अगर एक लाइन पे देखोगे, द कैंडिडेट 6 मंथ का इंडस्ट्रियल वर्कशॉप किया, 6 मंथ इंडस्ट्रियल वर्कशॉप का सर्टिफिकेट मिला, अब उसकी जॉब कंटिन्यूटी हो गया, एवरेज मान के चलो 15,000 की जॉब मिला है। उस 15,000 की जॉब से अगर 1 लाख रुपए 24 महीने में दे रहे हैं तो 4,000 रुपए महीने आता है। क्या वो आराम से अपनी 4,000 रुपए एजुकेशन फीस नहीं दे सकता यूनिवर्सिटी का? बिल्कुल दे सकता है। तो उस कैंडिडेट को अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ा, राइट? अब 2 साल उसका एमबीए कंप्लीट हो गया या 15 महीने का उनका एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से। लेट्स टेक एन एग्जांपल। 2 इंसान है, एक इंसान है मिस्टर ऑर्गो और एक इंसान है, सोचो, रवि, राइट? अब रवि वो कैंडिडेट है जिन्होंने ग्रेजुएशन था, ग्रेजुएशन के बाद किसी जगह से जाके एमबीए करने लगा, किसी कॉलेज पे जाके एमबीए करने लगा, रेगुलर एमबीए करने लगा, और 2 साल बाद एमबीए कंप्लीट करने के बाद जॉब इंटरव्यू में पहुंचा। तो रवि के पास क्या है? ग्रेजुएशन का डिग्री है, एमबीए की डिग्री है, और इन बिटवीन एमबीए 2 महीने का एक इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट है।
और एक कैंडिडेट है ऑर्गो, जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद दिशा में सिलेक्ट हुआ, जो 2 साल एमबीए कंप्लीट करने के बाद एक जॉब इंटरव्यू में गया। अब ऑर्गो के पास क्या है? इंडस्ट्रियल वर्कशॉप की सर्टिफिकेट है, एमबीए डिग्री है और 2.5 साल की वर्क एक्सपीरियंस है। अब उस जॉब इंटरव्यू में जहां पे रवि भी है, ऑर्गो भी है, हु इज द प्रेफरेबल कैंडिडेट फॉर कंपनी? Sir, it's Orgo. Always Orgo, sir. So this is the plan for our this that we started from today. Apply आप लोगों को इसीलिए पूरे जितने भी हमारे साथी हैं सबको इसीलिए हम लोग बुलाया कि आप लोग भी इस चीज को समझो. If you have any candidates in your near and dear in your reference, you can ask them for apply. इंटरव्यू के लिए अप्लाई करें. अगर वो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, उनकी कैरियर सेट है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड उनकी कैरियर सेट है. राइट? So this is very simple and very uniquely designed our program that we call DISA, GPS of your future. Any question? Sir, yes, sir. Yeah, please. Sir, actually, in this DISA project, we are only focusing to the BTech candidates and the management candidates, means who are dreaming of doing management and means like MBA and BTech. Your question is not clear to me. I'm sorry. Yes, sir. सर शी इज आस्किंग कि बीटेक स्टूडेंट्स को बस लेना है कि एमबीए स्टूडेंट्स के लिए भी है? Sir, am I audible now? Yeah, please. Sir, my question is that in this DISA project, we are only focusing to that candidate who are pursuing like dreaming to pursue MBA and BTech, means like MTech. No, they are not pursuing MBA. They are planned to pursuing MBA. Plan to pursuing MBA and MTech only. Not MTech. That is actually, see, this is the thing. This is the set of mind that एक ग्रेजुएट को पहले से डिसाइड कर लेते हैं एमबीए करना है. जरूर आज के दिन में वो माइंडसेट नहीं चलता है. आज के दिन में स्पेशलाइजेशंस की जमाना आ रहा है. आप एमबीए ना करके भी हायर स्टडीज कर सकते हो विद द सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन. यहीं पे उनको वो ग्रूमिंग मिलेगा. राइट? यस. यहाँ पर हम उनको कैटर करेंगे. यहाँ पे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो 2022 में ग्रेजुएशन पास आउट हुआ है या 2021 में ग्रेजुएशन पास आउट हुआ है एंड जो अपना करियर बनाना चाहते हैं और आगे जाके हायर स्टडीज करना चाहते हैं. So in this project, someone is like background BCom and arts means BA. So they are looking for like in PG background means after completing their BCom or BA. So we can apply for that means Yes, that is a project. They can apply. If they are looking for like BEd. मैं अभी बोल रहा हूँ they can apply, but यहाँ पर एक चीज और आता है कि whatever profile we offer, we are offer the profile technical and management profile. We are not offering the profile of teaching because you can't control the teaching profile because teaching profile में किसी का भी सपना नहीं होता है प्राइवेट टीचर बनूं. सबका सपना होता है गवर्नमेंट टीचर बनूं. तो गवर्नमेंट जॉब को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते. Okay. So basically we are focusing like management and technical. Management and technical that we control. आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो कि टीचिंग की कब एप्लीकेशन निकलेगा? कुछ स्टेट में तो ऐसा हालत है 2014 में एग्जाम हुआ था अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं निकला है. राइट? तो गवर्नमेंट वाली चीजों पे हम नहीं कंट्रोल करते. कैंडिडेट है, जैसे आप ही के वाले एग्जाम्पल पे आता हूँ. कैंडिडेट है, वो बोल रहे हैं मेरे को बीएड करनी है, तो जाहिर सी बात है हम उनके साथ बैठेंगे, काउंसलिंग करेंगे कि ये आप बीएड कीजिए. बट आपको भी पता है आप जिस रास्ते में जा रहे हैं उसका कोई डिफाइंड टैग नहीं है, टाइमलाइन नहीं है. सो अगर आप उसको लेके एक प्लान बी को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ज्वाइन विद अस. वी कैन डिजाइन योर प्लान बी. Okay, got it, sir. Any question? Hi Abhijit, happy Holi. Same to you, sir. He is Abhijit from Bihar and Abhijit also my partner. Abhijit का एक इंस्टीट्यूट है, वो अभी टीम में नहीं पार्टनर बन चुका है.
अभिजीत की इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में मैं और अभिजीत मिलकर हम बच्चों की ग्रूमिंग का क्लासेस भी करवा रहे हैं, लाइक इंग्लिश ग्रामर, दीज आर द थिंग्स। बच्चे ठीक है सब? यस सर, सब ठीक है। एनी क्वेश्चन? किसी का कुछ सवाल और दिशा प्रोग्राम को लेके? कोई सवाल नहीं? ऑल क्लियर? मनीषा जी, सिद्धायनी जी, रजनी जी, सर? सर अभी तो क्लियर है, जब काम करेंगे इस पे फिर जो क्वेरीज आएंगी देन वी विल आस्क। दीपंकर चाचा? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ। और सर अगर कोई 2-3 साल पीछे का कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, वो करना चाह रहा हो तो कोई ऑप्शन नहीं है? हाँ ऑप्शन है ना, वी हैव अ डिफरेंट इंडस्ट्रियल वर्कशॉप फॉर देम, दिशा इज नॉट फॉर देम। ओके सर। Try to understand what we try to create this DISA. We try to create this DISA is an exclusive property for the recent year graduate. आने वाले 1-2 साल के अंदर ग्रेजुएट बच्चे वेट करेंगे, हम इनको उस जगह पे लेके जाएंगे कि ग्रेजुएट बच्चा वेट करेंगे कि दिशा की एप्टीट्यूड टेस्ट की डेट कब निकलेगा, बिकॉज दिस इज द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी बनेगा। यहाँ पर उनका जो कंपटीशन होगा फ्रेशर्स ग्रेजुएट वर्सेस फ्रेशर्स ग्रेजुएट, यहाँ पे उनका कंपटीशन नहीं होगा कि 2019 ग्रेजुएट 2017 ग्रेजुएट, वो उसके साथ कंपटीशन नहीं है, 2023 वर्सेस 2023। We try to create this exclusive property for them. Sir, are we going to conduct aptitude tests also? Yes. अभी तो फिलहाल छोटा है और इसके बाद इसको हम सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड एप्टीट्यूड टेस्ट पे लेके आएंगे। अभी तो सिर्फ 25 क्वेश्चंस का है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस में एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। That aptitude test based on psychometric test. That's how we can assess them for their strength and interest. PDF फाइल में मेंशन है, कल थोड़ा सा जल्दी भेज दिया था 12 साढ़े 12 बजे। सर आपने एक वो क्लिनिक का भी वीडियो भेजा था यूट्यूब। हाँ उसी काम में ही तो कल पूरे दिन श्वेता ने मेरा खाई, वो जो क्लिनिक का ही है श्वेता। श्वेता है तो या तेरा फोन है यहाँ पे? श्वेता है नहीं, उसका फोन है। Any question for this? So this is overall the DISA program. अब एक दूसरा वाला प्रोग्राम ऊपर सब क्लियर है, और को म्यूट कर दो। दो जगह से लॉगिन है तो this is the program that for exclusive property for graduate students. Apart from that, we have an open-ended program, open to all program, and this is also very uniquely designed. This program exclusively for female candidate. This program exclusively for female candidate, including housewife. Normally housewife बोलते हैं मेरे को डेटा एंट्री का जॉब दे दो या कॉलिंग का जॉब दे दो, these are the things हाउसवाइफ बोलते हैं। हम लोग हाउसवाइफ को सिर्फ काम नहीं देंगे, उनको वो स्किल ग्रूम करके देंगे इस प्रोग्राम के थ्रू कि कल जाके वो अगर हमारे अम्ब्रेला के नीचे ना भी रहे तो उनका अर्निंग बंद नहीं होगा। The designation, the profile of this program is online health assistance. Online health assistance पे we trained a female candidate or a housewife और a female candidate जिनको हम ट्रेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नाम से आपको पता चल रहा है कि ये ऑनलाइन हेल्थ
असिस्टेंट्स की बात कर रहा हूँ, सो उनको टेक्निकल पूरी ट्रेनिंग मिलेंगे एज ए डाइटिशियन कोच, न्यूट्रिशन कोच, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड वेलनेस कोच, योगा एंड ऑनलाइन योगा एंड ऑनलाइन फिटनेस इंस्ट्रक्टर और डायबिटिक एडुकेटर का प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगा कि वो सामने वाले को गाइडेंस दे पाए. इट्स नॉट ट्रेनिंग, इट्स अ सर्टिफाइड ट्रेनिंग मिलेगा फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल. As well as we also trained for their com skill, like how to pause, how to describe, how to handle the objections, how to give in presentations, how to guide present, all these things. And because of its online help advisor assistance, so that's why we also train them social media marketing. So 6 month हम एक फीमेल को तैयार करेंगे इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, और सिर्फ तैयार नहीं करेंगे, जैसे ही उसका ये कंप्लीट होगा दे स्टार्ट वर्किंग फॉर दिस. ये डिफाइंड प्रोफाइल है, इसी प्रोफाइल में वो हमारी इंटीग्रेटेड क्लिनिक के साथ जुड़ के काम स्टार्ट कर देंगे. उनका वर्क क्या रहेगा? ऑनलाइन पेशेंट्स को हैंडल करना, पेशेंट के साथ डॉक्टर कंसल्टेशन होने के बाद पेशेंट को डाइट चार्ट गिवन देना, एक्सरसाइज बताना, फिटनेस ट्रिक्स बताना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की गाइडेंस देना, डॉक्टर कौन सी मेडिसिन दिया है, वो मेडिसिन कैसे लेना है, नहीं लेना है, ये सारे चीजें गाइडेंस करना, और ऑनलाइन सोशल मीडिया में ब्रांडिंग बूस्ट अप करना, लीड जनरेशन करना. ये उनका जॉब प्रोफाइल रहेगा और इसी रिलेटेड 6 मंथ उनको प्रॉपर हम ट्रेनिंग करेंगे. दिस इज द प्रोफाइल एक्सक्लूसिव फॉर द फील्ड, राइट? So these 2 new projects that we start from today, and that's why we are here, and rest of is the होली की फालतू बातें के लिए. जैसे फालतू बातें की बात बोला, और ने सबसे पहले कैमरा ऑन कर लिया. सर कैमरा ऑन है, नेटवर्क लैच हो रहा है यहाँ पर बहुत. So this is from my side, this is all over. Anyone कुछ भी कुछ बोल सकते हो. उसके बाद हम लोग अपना आज होली की एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे. We plan some activities. Everyone is requested, please turn on your camera. Keep turn on. कैमरा ऑन रखिए सब अपना. निकिता तू है या तेरा फोन है? मैं हूँ. तो हूँ तो फोटो दिखाओ अपनी, प्रदर्शन दियो अपनी शक्ल की. हाँ, अभी तुझे क्या करना है? गाना गाना है. तू मना के तेरा असाइनमेंट डबल कर दूंगा कल से. श्वेता, डांस करके दिखाना है. श्वेता बहुत अच्छा डांस करती है. बोल रहा हूँ डांस तेरे भाई इतना अच्छा अच्छा बोला, मैंने अभी कहा थी. यही थी सर. आवाज नहीं दिया तूने. एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस 2 प्रोग्राम? कोई क्वेश्चन नहीं है? सिद्धि जी आप हो? फोन है आपका? मैं हूँ सर, इंटरनेट आप का हो? इशू. सुश्री जी एंड जाहिदा, जयप्रकाश. ओके, सो आई होप सारे सीरियस बातें हो गया. किसी को कुछ सीरियस रखना है? देखो धीरे धीरे मैंने सूट भी रख दिया, टाई भी खोल दिया, सब कुछ. आई एम रेडी नाउ फालतू बातें करने के लिए. किसी को कुछ सीरियस बातें करनी है यार? बताओ भाई. नहीं करना है? सो लेट्स स्टार्ट आवर ऑनलाइन होली सेलिब्रेशंस. एंड ऑनलाइन होली सेलिब्रेशन में हम मौज मस्ती कर सकते हैं. मौज मस्ती में क्या करते हैं हम? एक्टिविटी कर सकते हैं. एक्टिविटी में नो सीरियस एक्टिविटी. एक्टिविटी का चॉइस दे रहा हूँ, आप लोग चूज कर लो. एक तो सॉन्ग होगा, एक स्टैंडिंग कॉमेडी होगा, फनी डायलॉग थ्रोइंग होगा, और डांस होगा वहीं पे. तो आप बोलो किसको क्या करना है. सिद्धि जी कैमरा ऑन करो.
आपसे स्टार्ट करनी है। हाँ। कुछ तो आपको कभी रहा होगा ना, सिंगिंग, डांसिंग। जैसे हमारी जो श्वेता जी है, उसका हॉबी है पेड़ पे चढ़ना। अभी मैंने उसका कुछ फोटो देखे, इन लोगों का ऑफिस की ग्रुप मीटिंग था, तो एक भी फोटो में वो जमीन में नहीं है, आइदर वो पेड़ पे है या जमीन में लेटी हुई है, किसी फोटो में एक भी नहीं था। तो कौन स्टार्ट कर रहे हैं एंड कैसे स्टार्ट करेंगे? गाना से स्टार्ट करें, डांस से स्टार्ट करें, कैसे करनी है? मनीषा क्या करती है? गाना गाती है, डांस करती है, क्या करती है? हाँ, ड्राइंग बनाती ड्राइंग बनाते हो? नहीं, ड्राइंग नहीं चलेगा, सीरियस बातें नहीं होगा। सिमरन, व्हाट्स योर हॉबी? Sir, I'm not comfortable right now because I'm just new member in your team. नो नो, That's why. हमारे यहाँ पे तो जिस दिन फॉर्म फिलअप हो जाते हैं उसी दिन उनका 100 साल की विंटेज हो जाते हैं। Okay. बिकॉज यू आर इन माई टीम। हमारे टीम में आके कोई बोलेगा कि आई एम न्यू, दैट्स व्हाई आई एम नॉट कंफर्टेबल, इट्स नॉट पॉसिबल। इसका मतलब मैंने पहले दिन से आपके साथ लेग पुलिंग नहीं किया। नहीं, no. बताओ, शुभांगी से पूछो। शुभांगी ने तो ज्वाइन करने से पहले मेरा शकल भी नहीं देखा था, सिर्फ फोन पे ही बात हुआ था, है ना? सो डोंट वरी मैम। चलो अभी थोड़ी देर में, मतलब अभी आप कंफर्टेबल फील कर लोगे। सिद्धि जी, आपके पड़ोसी वाले बहन कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और आप चुप बैठे हो। पहले तो आप कैमरा ऑन करो। हाँ, ये क्या है? आपने महाराष्ट्र से दोनों बहनें हो, दूसरी बहन बोल रहे हैं आई एम नॉट कंफर्टेबल। हाउ इट Means पॉसिबल? comfortable means मतलब ये एक्टिविटी और ये इन सब में सर, बाकी तो नहीं मैम, क्या बात कर रहे हो? नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द सिटी ऑफ एनर्जी, स्टेट ऑफ एनर्जी। वहां पर आप बोलोगे कि आप एक्टिविटी में कंफर्टेबल नहीं हो, कैसे होगा? किसी को तो स्टार्ट करनी है, कौन स्टार्ट करेगा? श्वेता, डांस करके हम स्टार्ट करेंगे या गाना गा के? मराठी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, यही हमारी एक्टिविटी हो जाएगी। हाँ सर, हम मराठी में बात कर लेते हैं। हाँ, हो ना, बरोबर आहे. हो, आपण बरोबर मराठीत आहे. बोलून मराठी ती आपली ऍक्टिव्हिटी होऊन जाईल. मैं ट्रांसलेटर एक्टिव कर लेता हूँ, दैट का आई अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अमेजिंग। सर, आप लोग भी सीख जाओगे मराठी हमारे साथ. मेरे को थोड़ा बहुत तो समझ आता है। हैव अ गुड नेटवर्क पुणे। ओके, दैट्स गुड. पुणे और नासिक। So, आप लोगों का दो चीज अच्छा लगता है, हर बातों के बाद बराबर ये बोलना। मतलब ये ठीक है ना, जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, दैट इज योर टोन इन बराबर। रिस्पॉन्स देते ना सर, इसीलिए फिर सामने वालों को भी अच्छा लगता है कि हाँ. अभी कुछ दिन पहले सिद्धि ने मुझे एक अच्छा पंच लाइन सिखाया है, बड़े बड़े बातें बड़ा पाव खाते। तो ये दैट इज द टू थिंग्स दैट अच्छा लगा मुझे उधर का। सिद्धि, निकिता गाना गाएंगे ना? नहीं तो कल से 200 कॉलिंग। निकिता गाएगी, गाना गाएगी। निकिता कौन स्टार्ट करेंगे? ठीक है, जिसको सॉन्ग आता है वो तो गाए। हाँ सर, आप ही स्टार्ट कर दीजिए. तो मैं गाना गाऊंगा ना। मैं गाना तब गाता हूँ जब पेट में 2-4 बूंदे जाते हैं, ड्राई पेट गाना नहीं निकलते हैं। हम दिल्ली में रहते हैं ना, दिल्ली में पेट में 2-4 बूंदे जाने के बाद गाना क्या बहुत कुछ बन जाता है लोग। कौन स्टार्ट करेंगे? भैया ऐसा थोड़ी है, ये थोड़ी ना भाई, कोई तो लो इनिशिएटिव। रजनी मैम। सर, आप लोग स्टार्ट कीजिए. अरे नहीं, आपसे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। कोई भी अच्छा गाना। गुलाल नहीं है किसी के पास? घर पे तो गुलाल होगा ही ना। सर, मैं सबसे फर्स्ट में बोलना चाहूंगी सारसी मैम. सारसी मैम इज वेरी सीनियर टू अस, सो उनको पहले स्टार्ट करवाते हैं हम लोग.
मतलब आप कहने चाह रहे हो कि सारसी मैम हमारी मार्गदर्शक बने आज का। यस यस सर, यस सर। पब्लिक डिमांड मैम, हम क्या बोल सकते सर हैं। मेरी स्कूल में ना बच्चों को गेम्स खिलाती थी, मैं यहाँ पे आप लोगों को सबको ऐसी गेम खिला दूंगी कि सब हाँ हाँ, भाग जाएंगे फिर यहाँ गेम्स से। खिलाओ, कुछ भी करवाओ। मैं मेमोरी गेम खिलवाती मतलब नहीं, प्ले करती एप्लीकेबल। मतलब वो कॉलेज स्टार्ट हो गया, अभी सीरियस बातें एप्लीकेबल नहीं है। आज और कल कोई सीरियस बात नहीं है, फिर परसों होंगे। वो भी डिपेंड करेगा किसका हैंगओवर खत्म हुआ, उसके बाद परसों सीरियस बातें डिपेंड करेगा। तो बार बार प्रकट हो रही है, बार बार जा रही है। आ गया तेरा क्लिनिक पे इंतजाम, आ गया सारे। म्यूट है तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ आगे कुछ आगे। अरे कोई तो स्टार्ट करो, ऐसे सन्नाटा नहीं होना चाहिए। ना तो मैं शोले का करीम चाचा हूँ और ना मुझे बोलना अच्छा लगता है, इतना सन्नाटा क्यों है। शोले में ने बोला था। सर मैं 2 लाइन गा देती हूँ, हाँ चलो हाँ, कोई नहीं प्लीज स्टार्ट प्लीज कर रहा है आप स्टार्ट करो, फिर तो बाकी। मैं ही कर देती हूँ। उठ सबके कदम तररम पम पम, हाजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठ सबके कदम तररम पम पम, प्लीज क्लैप क्लैप। उठे सबके कदम तररम पम प्लीज पम, अनम्यूट हाजी एवरीवन। ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। थैंक यू। थैंक यू रिनी मैम। वाह वाह, नाइस। नेक्स्ट उर्वशी जी। नहीं आता। अरे क्या बात करो सर, पंजाबी हो, पंजाबी गाना और भांगड़ा ना आए तो हो ही नहीं सकता। बिना बिना ढोल, बिना गाना, बिना पंजाबी, तो मतलब कैसे हो, पॉसिबल ही नहीं है। वो भी रोहिणी से, अब तो और भी पॉसिबल नहीं है। My voice is not good. नो प्रॉब्लम, हम लोग इसी वॉइस को, हमारे यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, आवाज फिल्टर हो जाएगा। सर किसी और को बोल दो अभी। I'm not wrong. अरे स्टार्ट तो करो, फिर आएंगे सब, एक एक के बाद आ जाएंगे। मेरे में नहीं आ रहा अरे गाना नहीं आ रहा, चलिए गाना ढूंढ लीजिए। ना। हाँ, किसको पकड़ू किसको पकड़ू। मनीषा, स्माइल नहीं चाहिए, गाना चाहिए। स्माइल दे रहे। नहीं गाती हूँ गाना, जितना था उतना गा ले। सच में नहीं गाती हूँ। मतलब गाना डांस ये नहीं करते बचपन से, सिर्फ ड्राइंग करते थे। बचपन से गाना नहीं करते तो उनके के साथ जब निकलते हो क्या सुनाते हो उसको। ये उनको आता है सॉरी गाना गाना, मतलब उनका खुद अच्छा, वो गाना तुझे गाते। गाना सुनाता है। हाँ। भैया देखा, श्वेता, कभी तेरा उनके ने तुझे गाना सुनाए। उनके 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 नहीं सुना है। और वो तूने कभी अपने उनको को सुनाया गाना। ना बोल रहा है, अभी तक तो तू बोल रहा था तेरा उनका ही नहीं है, अभी बोल रहा है गाना नहीं सुना है। क्या क्या बात हाँ तो सर, हाँ सर, तो है नहीं तो कैसे सुनाएंगे। कौन नेक्स्ट, कौन जाहिदा। एनीथिंग स्पेशल फ्रॉम कश्मीर। सर मैं ही गा देती हूँ होली पे हाँ गाना। प्लीज 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 प्लीज। जिनको वॉइस अच्छी नहीं लगे वो अपना मतलब वॉल्यूम बंद कर दे। अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे सब गाना अच्छा है।
पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे पिया तो से। ओ आई होली आई सब रंग लाई, बिन तेरे होली भी ना माय। ओ भर पिचकारी सखियों ने मारी, भीगी मोरी सारी आए हाय, तन बदन मोरा कांपे थर थर, दिनक दिन दिन दिनक दिन दिन, पिया तो से नैना लागे रे। एक नोटिस कर रहा था, आप जब गा रहे थे सबसे डीप फील लेके जो सुन रही थी वो निकिता थी, वो ऐसे ऐसे करके सुन रही थी। तो आप नेक्स्ट निकिता स्टार्ट करेंगे गाना। आप तूने अगर गाना स्टार्ट नहीं किया सच में 300 बन जाएगा दिन में कॉलिंग, सोच ले। ठीक है सर, हम गा लेते आएंगे क्या? ये तेरा रेडियो की ट्यूनर है, ऐसे किया तो गाना याद आ जाता है। हमको सब दो नहीं आता, बीच को खाते हैं। तो हम आपको ज्वाइन करते हैं ना, बीच में नहीं आता तो। हाँ मैम, ज्वाइन करेंगे हमको। यहाँ पे भी सीधम गाइड कर देंगी। गाएगी सर, हम और सिद्धि मैम। नहीं सिर्फ यस्टरडे उन्होंने बोला सिद्धि मैम ज्यादा काम दे रहे हैं सर, आपको रिपोर्ट करूंगा। नहीं, हम तो ऐसे बोलेंगे नहीं सर, हम बोलेंगे हमको ऐसा फील हो रहा है कि हम ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन सिद्धि मैम तो कम ही देती है हमको। मतलब मेरा नाम सुनते हैं उसके दिमाग पे बिजली गिर जाते हैं। तो हाँ भी बोल रहे। चलो गाना शुरू करो। दिल है छोटा सा, छोटी सी आसा, मस्ती भरपन में छोटी सी आसा, चांद तारों को छूने की आसा, आसमानों में उड़ने की आसा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आसा, आसमानों में उड़ने की आसा। बस सर। वाओ, नाइस। अब मुझे पता चला पहले दिन से तू 100 कॉल को इतना ज्यादा क्यों बोल रही थी। तेरी छोटी सी आशा तो तू गाना ही गाई। ओके, बड़े देर से एक हमारी महिलाएं सदस्य जिनकी शकल और उनकी निक नेम मिलता जुलता है, वो बड़े देर से चुपचाप स्माइल किए जा रहा है। अब उनकी बारी है गाना गाने का। शकल भी छोटा सा है, निक नेम भी छोटी है। तो स्नेहा जी स्टार्ट करें। तो स्टार्ट कर, नहीं तो मैंने उस दिन दोपहर वाला इंसिडेंट सबको बता दूंगा अभी ग्रुप मीटिंग में। सर नहीं आता, सॉन्ग नहीं आता। सॉन्ग याद करो, गाना गाना है। दिस इज द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इन ऑनलाइन। श्वेता कहाँ है? श्वेता डांस करने के लिए तैयार हो जाओ भाई। श्वेता, अरे कैमरा लेके पीछे चले जाना किसी एक रूम में। नहीं। हाँ खाली तो है आज सारे रूम। कौन सी तरफ पेशेंट आया है आज? आया। तो चला जा, कैमरा लेके गाना बजा, डांस करना है तुझे। ना फिजियोथेरेपी आप चल रही है। फिजियोथेरेपी चल रहा है? अच्छा। और मैम के कुछ गेस्ट आए हुए हैं। अच्छा, आ गया सारे गेस्ट? हाँ जी। अच्छा, इसलिए तो डांस नहीं करता? नहीं करूंगी बाद में जब सेलिब्रेशन होगा। वो तो वहां पे करेगी, हमें देखना है ना। यहाँ पे कैसे करूं?
ये डांस करने के लिए तो एक बार भी नहीं बोला नहीं करूंगी। Who next? नया उर्वशी जी गाना ढूंढ लिया आपने? सर ढूंढ रही हो, रुको। अभी भी गाना ढूंढ रहे हो? हाँ जी। जाहिदा आपने क्या ढूंढा? सर अब सिद्धि मैम को बोलिए गाने। सिद्धि तो गाएंगे, सिद्धि क्या कर रहे हैं, सिद्धि पूरा गाएंगे, ये सिर्फ मुखड़ा नहीं गाएंगे, मुखड़ा एंड अंतर दोनों गाएंगे। सिद्धि का कल एंगेजमेंट एनिवर्सरी था, अभी वो बहुत हाई नोट पे खुश है, तो आज तो बहुत अच्छे गाएंगे। अजय, अजय जयपुर, अजय क्या गाओगे? गाना गाओगे, कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी, क्या करोगे? सर नहीं आता। अरे ऐसा कैसे? सर अपना यूट्यूब पे एक चैनल है 4.4 के फैमिली है, बस वही है। हाँ तो उसी के रिलेटेड कुछ फनी डिस्कशन, गेमिंग चैनल है सर वो। क्लियर हो जाओ। गेमिंग चैनल है सर वो। दीपंकर चाचा क्या गाना है आपको? हाँ सर, अभी थोड़ा देर बात करेंगे सर। 5 मिनट। क्यों थोड़ी देर बाद माता आएंगे तुम्हारे अंदर जो तुम करोगे? नहीं सर, मैं शायरी सुनाऊंगा सर। शायरी? अरे भाई साहब देखा कितना छुपा हुआ टैलेंट है, शायरी सुनाएंगे। चलो स्टार्ट हो जाओ। अच्छा तुम शायरी लिख रहे हो क्या? हाँ सर, एक प्रिपेयर कर रहे हैं। गुड गुड गुड। चलो दीपंकर शायरी प्रिपेयर कर रहे हैं। सुश्री जी आप क्या गाना सुनाओगे? सुश्री जी आप हो या फोन है आपका? लेकिन कुछ नहीं आता मेरे को। नहीं नहीं ऐसे थोड़ी, आपको कुछ नहीं आता है तो मैं आपको ऑटोकैड गलत सिखा दूंगा, बिल्डिंग गिर जाएगा। ऑटोकैड आता है गाना नहीं, वो आपको आज तो कुछ करना होगा। स्नेहा फॉर योर टर्न, प्लीज स्टार्ट। करो बेटा करो जल्दी। सर अभी ऐसे कोई आ ही नहीं रहा माइंड में। Sir, we both will sing then. हाँ दोनों मिलके गाओ। स्टार्ट करें? ठीक है। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई नहीं हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। Done. That song is very much relevant to you. Why? Depending on your present situation and yesterday and all this माहौल। और इसी गाना में सिर्फ एक वर्ड जोड़ जाएगा तो स्नेहा के लिए भी अप्रोप्रिएट हो जाएगा। काश। कैसे? काश। हाँ? नीले नीले अंबर में हाँ? चांद जब निकले, चांद काश निकले, क्योंकि ये तो सोचता हुआ गा रहा है ना। मेरे को लिरिक्स ही नहीं याद आ रहे थे। इसका तो लॉन्ग डिस्टेंस लव आजकल है ना, तो ये सोचता हुआ गाएगी। आज तो स्पीकर में नहीं है ना। नहीं, कौन नहीं, ना नहीं अब रिस्क नहीं लेना है। ओके सो नेक्स्ट हु? जाहिदा। ओके चलो आप लोग को एक दूसरा ऑप्शंस भी दे रहे हैं। यू कैन ऑल्सो शेयर अ फनी इंसिडेंट अबाउट योर लाइफ, मतलब आपके साथ हुआ है ऐसा कुछ फनी इंसिडेंट भी आप शेयर कर सकते हो। जरूरी नहीं है गाना नहीं हो रहा है तो आप फनी इंसिडेंट भी शेयर कर सकते हो। जाहिदा सोच रहे हैं कौन सी फनी इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि उसके साथ हम फनी
हाँ सर, मैं वही बोलने वाली थी, ऐसे कोई फनी मोमेंट सबका होगा ना, कुछ शेयर हाँ करते हैं। वो करो, वो भी शेयर करो। ये तो हमारे मनीषा के पास तो बहुत है, जितने भी इवनिंग में उनके साथ निकलते हैं बहुत सारे फनी सर, फनी नहीं है वो तो बेइज्जती वाले है ना। मैं हाँ सर फनी मोमेंट नहीं है कोई। या प्लीज दीपंकर। अच्छा, मैं होली के ऊपर एक शायरी सुनाने जाना हूँ, बहुत ही प्यारा। अरे प्लीज प्लीज, इरशाद 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 इरशाद। ठीक है। सभी रंगों का रस है होली, मन का उल्लास है होली, जीवन में खुशियाँ वाह, वाह, भर वाह, देती वाह। है, बस अरे बीच में इसीलिए ऐसे खास बोलना है तो होली। रुक जाएगा, प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है भैया। बोलने के बाद 2 सेकंड रुकते हैं, प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो। 2 मिनट बाद बोलते रुकते हैं। बोले फिर से वाह, रुक वाह, के वाह। बोलते हैं, फिर से रुक के बोलते हैं। हाँ तो भाई साहब, जहाँ तुझे रुक के देखो कितना उल्टा उल्टा इंसान है। जहाँ रुक के बोलना है वहाँ पे सीधा बोल रहा है, प्रेजेंटेशन के टाइम सीधा बोलना होता है, वहाँ पे तू अटल बिहारी जी की तरह रुक जाता है। ठीक है, चलो फिर से शुरुआत से। हाँ ठीक है। सभी रंगों का रस है होली, मन में उल्लास है होली, मन में उल्लास है होली। वाह वाह वाह। जीवन में खुशियाँ भर देती है, बस इसीलिए खास है होली। वाह भाई वाह वाह। हैप्पी होली टू ऑल। अच्छा ये शायरी था, छोटा सा शायरी है, छोटा सा शायरी है। ये शायरी था, शायरी का मिनिएचर था। शायरी छोटा सा था। हाँ ये मिनिएचर था। अच्छा, मिनिएचर शायरी हो गया। और कौन? उर्वशी जी अब तक तो प्रिपरेशन हो गया। सर आप क्या की मारोगे गाना? अरे क्या बात कर रहे हो, मैंने आपको क्या बोला? मेरा जॉब कहाँ पे था? डीसी चौक सेक्टर 9। तो मुझे उधर की माहौल पता है, मैं वहाँ पे 3.5 साल जॉब किया। सर कौन सी कंपनी में थे? मेरे हस्बैंड भी पूछ रहे थे आज। आईसीआईसी प्रूडेंशियल सुभिक्षा के ऊपर ब्रांच था। इन विच ईयर? वहां पर मैंने 2006, 2007, 2008। ओके। फिर आ गया आपके M2 के। शायद आपने देखा हो हस्बैंड को, बट पता नहीं। क्या नाम है? बालाजी टेलीकॉम्स के नाम से वहीं डीसी चौक पे थी शॉप। आपके हस्बैंड का नाम बालाजी टेलीकॉम थोड़ी है, वो तो शॉप का नाम है। शॉप का नाम ही बता रही हूँ। मैंने पूछा था क्या नाम है आपके हस्बैंड का? हस्बैंड का यतिन। तो वहां पर मिले होंगे, क्योंकि उस टाइम तो वो जो डीसी चौक वाले पार्किंग था, वो हमारी इवनिंग का ऑफिस बन जाता था, और सुभिक्षा के ऊपर हमारे मॉर्निंग का ऑफिस होता था। दिल्ली में एक चीज फेमस है ना, कारोबार। हाँ आई गॉट इट। ठीक है, वो पार्किंग में हमारी कारोबार वाला ऑफिस था, और ऑफिस में ऑफिस वाला ऑफिस था। चलो स्टार्ट करो। सर मुझे नहीं आता, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। आई एम नॉट गुड एट सिंगिंग। आजकल तो जितना भी स्पेशल आवाज है उन्हीं का ही तो जमाना चल रहा है। आप किसी को भी ले लो, धनवी को ले लो, नेहा कक्कर को ले लो, दे आर नॉट इज अ कॉमन वॉइस बट दे आर ऑल फेमस। अच्छा, मैं एक गाना ही सुना देता हूँ। थोड़ा सा टाइम मिल गया हमारे दीपंकर चाचा के वजह से आपको। चाचा स्टार्ट करें। ठीक है, ये बहुत ही एक और तो कुछ सीख ले, अब तेरा बारी है। अच्छा, मेरी आवाज तो ठीक है ना? साउंड क्लियर है ना? अरे बिल्कुल 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 सुनाई दे रहा है एकदम। सिद्धि मैम ने भी हाँ बोला है। चलो ओके ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हम न पाए, तुम देना साथ मेरा
वो हम न पाए। ये गाना था या पिछले 15 दिन से जब मेरा तेरा काम नहीं बन रहा था, डांट पड़ रहा था, वो सिचुएशन को बयान किया? अभी क्रिएशन करके अभी प्रेजेंट किया सर। मतलब ये तेरे पिछले 15 दिन से तेरे से असेसमेंट नहीं हो रहा था, तेरा बच्चा सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन में नहीं आ रहा था, ये देख बिल्कुल मैच हो गया। क्या बात, देखो दैट इज सॉन्ग, माइंडसेट के साथ निकलते हैं। सिद्धि का गाना देखो, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है माइंड प्रेजेंट सिनेरियो के साथ। ओके उर्वशी जी। सर मैं पंजाबी सॉन्ग गाऊंगी। अरे सर वही तो चल रहा है इंडिया में, चल क्या रहा है आजकल बॉलीवुड में। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ स्टार्ट हो जा। इसके बॉडी में एक अलग सी सेंसर है, पंजाबी गाना जाता है तो इसके हाथ पैर हिलने लगता है। ओके। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣਾ ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਜੱਟ ਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਨੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੈਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਛੱਡ ਜੂ ਜਵਾਈ ਮਾਏ ਤੇਰਾ ਨੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੈਲ ਛੱਡ ਜੂ, ਆਪੇ ਛੱਡ ਜੂ ਜਵਾਈ ਮਾਏ तेरा। थैंक यू सर। देखो ये होता है डिफरेंस। आपने हिंदी गाना गाए, रजनी मैम ने गाए, सारसी मैम गाए, दीपंकर ने भी गाए, वो था एकदम सुस्त वाली गाना। और उर्वशी जी ने गाया, लगा रसिया ने अटैक कर दिया, धड़ाधड़ एनर्जी वाला गाना। एक वर्ड खत्म होने से पहले दूसरी 4 वर्ड शुरू हो जाता है। ये होता है पंजाबी कम्युनिटी एंड पंजाबी लैंग्वेज की खासियत है ना, ऑलवेज जोशफुल। मेरे साथ आपके कम्युनिटी का उर्वशी एक चीज मुझे बड़े अच्छा लगता है, एंड उसका मैंने एक बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, शायद किसी को पता है, पीछे मैंने शेयर किया था। आपके कम्युनिटी में कॉमन जेंडर नेम होता है। मनप्रीत also go for girls, मनप्रीत also go for boys. Yes, yes. तो अभी मैंने शायद किसी को शेयर किया था। One of my friend name is मनप्रीत, boys एकदम लौंडा, बैठ के पीने वाला। One of my friend come known is मनप्रीत, married with kid. एक दिन we are road पे down, रात को गाली बकना था मनप्रीत को, क्योंकि उसने उस दिन शाम को आया नहीं। उसने उस दिन शाम को आया नहीं। इट्स नियर अबाउट 12:31। जब मैं जॉब करता था तब उस टाइम हमारा इवनिंग होता था, तो हम लोग ऐसे ही कारोबार कर रहे और मनप्रीत क्यों नहीं आया, तो सबकी गुस्सा हुआ। मैंने फोन उठाया, लगाया और फोन गया उसके पास, मनप्रीत द मैरिड वुमन विद किड। उसके बाद कम से कम 1 हफ्ता लगा था मुझे उसके हस्बैंड को प्रूफ देने के लिए कि ये है दूसरा मनप्रीत जिसको मैंने कॉल करना चाहा, आपकी वाइफ नहीं थे जिनको मैंने रात को 1 बजे कॉल किया था। तो ये बड़े खतरनाक इंसिडेंट है, बट यस दैट्स आई लव ऑलवेज। पंजाबी कम्युनिटी में ना बड़े कॉमन जेंडर नेम होता है। ये एक कम्युनिटी होता है जहाँ पर बहुत फ्रीडम होता है। मैं जिस कम्युनिटी और जिस जगह को बिलोंग करता हूँ ना, वेस्ट बंगाल, वो भी स्मॉल टाउन, जब मैं दिल्ली आया, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ज्वाइन किया और सारे पंजाबी फ्रेंड्स बने, मेल एंड फीमेल, तो उनकी लाइफ की फ्रीडम देखते हुए मैंने सोचा था मैं तो भाई पिंजरे में था। दे आर रियली गुड। ओके उर्वशी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द टीम। बड़े ही खास दिन में आप हमारे साथ जुड़े हो। थैंक यू सो मच एंड थैंक फॉर योर पंजाबी क्या नाम दूं, गाना नाम दूं, पंजाबी कीर्तन। Good one. Oh, so next on Argo, तुझे सिर्फ उछल कूद करना ही आता है श्वेता, या गाना वाना भी गा लेती है? नहीं सर, नहीं आता मुझे। नहीं, मैं श्वेता से पूछ रहा हूँ, श्वेता सिर्फ उछल कूद करना ही आता है या गाना भी गा लेती है? श्वेता
सिर्फ उछल कूद करना ही आता है या गाना भी गा लेती है? मैंने आज हर का पहली बार आना चाहिए। अरे गाले गाले ऐसे कैसे? मुंह से? कौन से? स्टार्ट करो। नहीं आता। श्वेता का बड़ी मतलब होता है ना हरियाणवी टोन है। तो श्वेता जब क्लिनिक ज्वाइन किया और फर्स्ट टाइम पेशेंट्स को बात करने लगे तो मैंने बोला थोड़ा सा डेमो दे। तो द वे श्वेता वाज स्टार्टेड दैट पेशेंट फील कि अभी पेल देगी मुझे ये। मतलब वो डॉक्टर कंसल्टेंट बुक नहीं कर रहा था, थ्रेटिंग कर रही थी, भैया बॉल आना है नहीं आना है, इस टाइम ऑफ टोन। फिर बता कि सर ये मेरा गलती नहीं है, मैंने 4 साल वहां पे पढ़ा किया तो ये आ गया मेरे पे। अभी भी बहुत ज्यादा नहीं, बाकी श्वेता बहुत अच्छी एंड वन ऑफ माय फेवरेट टीम मेंबर एंड बहुत ही क्विक लर्नर है श्वेता। एज लाइक जादू, मतलब श्वेता के साथ एक ही चीज का कंपेयर होता है, जादू। वो ऋतिक रोशन के साथ था, धूप खिला दो सारे चीज सीख जाता था। सो नेक्स्ट इज श्वेता। कोई मिल गया का जादू जो था ना, देखा नहीं आप लोगों ने? धूप खिला दो उसको सब कुछ सीख जाते थे। श्वेता भी ऐसा ही है, क्विक लर्नर है। थैंक यू सर। अच्छा ये तुझे तारीफ लगा? हाँ। अच्छा, मैं तो मजाक उड़ा रहा था। कोई नहीं, मजाक नहीं है। ओके नेक्स्ट कौन? आर्गो शुरू हो जाओ भाई। आइदर तुम शुरू हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें लेके शुरू हो जाऊंगा, फिर तुम्हें भागना पड़ेगा। श्वेता ये वही लड़का है, श्वेता ये वही लड़का है जिसका स्टोरी कल तुझे बता रहा था, होंठ फट गया था जिसका। तुझे मैंने जगह पे मूवी टिकट के लिए इतना ईगर है, उसने बोला कि सर मैम मेरा एक और कैंडिडेट है, आज मीटिंग उसका करवा देते हैं ना, फिर सेटिस्फेक्शन हो जाएगा मेरे को। सिर्फ मूवी टिकट के लिए नहीं, मैंने कल एक बार भी नहीं बोला कि मैं कॉर्नर सीट दूंगा। वो खुद बोल रहे हैं कि कॉर्नर सीट में थोड़ी दोगे। हाँ, मैं तो तुझे शरीफ बच्चा समझता था भैया। तुम कॉर्नर दिमाग पे तुम कॉर्नर सीट सोचोगे तो तुम्हारी होठ नहीं फटेगा तो दूसरे का फटेगा। वो तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है और कुछ नहीं। हाँ क्या मैम? विटामिन की डेफिशिएंसी है। मैम बोल रहे विटामिन। आप शुरू कर दिए। अब उस ये पूरा करने के लिए ई के आगे 3 अल्फाबेट ये खुद ब खुद जोड़ लेते हैं। नहीं सर। कुछ शुरू करेगा गाना? पहले हाथ हटा मुंह से, अब स्टार्ट कर। तो नहीं आता मुझे गाना। वो आता है, वो किसको आता है यहाँ पे? सबने अपने अपने हिसाब से गाए, तुम भी अपने हिसाब से गाओ। नहीं सर, में लोग हैं सामने बैठे। तो क्या हुआ? औरत चैनल घर में लोग हम नहीं गाए। घर में लोग हैं, फोन को स्पीकर में डाल जरा। घर में लोग हैं, फोन स्पीकर में डाल। जाहिदा सुना। अच्छा ठीक है, कोई फनी इंसिडेंट तो सुना दे अपने लाइफ का। सो याद ही नहीं आ रहा। मैं सोच कर आपको सुना देता हूँ। ऐसा कोई दिन जहाँ पे सिर्फ 60 डाल के चला गया था, ट्राउजर नहीं डाला था। नहीं सर। अच्छा अभिजीत आप क्या सुने? सर कुछ खास आता नहीं। तो जितना आता है उतना बनाओ, उतना सुनाओ। हम लोग आज की माहौल के हिसाब से खास बना लेंगे। सर सिंगिंग तो नहीं आता है सर, मेरा वॉइस ही थोड़ा मोट वॉइस है। हाँ, वो जैसे दीपंकर सुना है शायरी का मिनिएचर, वो भी सुना सकते हो।
श्वेता गाना रेडी कर ले जल्दी से, सुनानी है अभी। गाना रेडी कर ले जल्दी से, सुनानी है। ओके सर। और कौन है? मनीषा भाई कुछ तो बोलो, सिर्फ साइलेंट जोन पे आज नहीं रह सकते हो ना। आपका दूसरा सुश्री जी, आपको भी बोलना पड़ेगा कुछ। चलो अभी श्वेता गाना सुना रहे। रेडी श्वेता? तो लैपटॉप में गाना देख रही है, कौन सी गाएगी? सो किसका क्या प्लान है आज इवनिंग से कल तक का? हाँ, होली का प्लान किसका क्या बना है आज इवनिंग और कल? मेरा बस सर सोने का प्लान है। सोने का प्लान है? हाउ मेनी किड्स यू हैव? वन सर। देन यू कैन प्लान। वो भी सर रात के 12 बजे सोती है, उसका मुझे रात के सुबह के 10 बजे तक रहता है। कौन? मेरी छोटी बेटी। So why not you send your daughter's photo for calendar? ओके सर। श्वेता जी स्पेशल इनविटेशन भेजू गाना गाने के लिए? नहीं सर, मुझे आता है। जो आता है वही गा। कौन सा तुझे मैंने बोला तू बड़े अच्छी गाती है? जल्दी से बाहर, नोएडा में बहुत धूप है, 2 मिनट सर पे धूप लगा के आ, जल्दी जा। क्या? खुद याद आ जाएगा। बाहर नोएडा में धूप है बहुत, 2 मिनट सर पे धूप लगा के आ, याद आ जाएगा। मनीषा कुछ तो सुना। नेटवर्क इशू हो गया उसका। ओके, सो first of all I really thank to all and wish you all happy Holi and I hope इसके बाद किसी को काम करना है? किसी को काम करना है? नो। क्या? उसी ने सबसे बोला नो। किसी को काम करना है? सिद्धि? सिद्धि और निकिता एक ही स्पीड में मुंडी हिला रहे हैं। चलो किसी को काम नहीं करनी है और मैं भी नहीं करने दूंगा किसी को भी। जस्ट एंजॉय, स्टे विथ योर फैमिली, लॉट्स ऑफ एंजॉय कीजिए एंड अच्छे से एनर्जी गेन कर लीजिए, क्योंकि फैमिली टाइम में पूरी एनर्जी गेन हो जाता है। एंड देन सैटरडे विल स्टार्ट लिटिल लेट। हम सैटरडे स्टार्ट करेंगे आज की जैसे ही 10 या 10:30 बजे, फिर अपनी बाकी का काम को कंटिन्यू करेंगे। और फॉर द टाइम समय निकाल के 2 चीज जरूर भेज दीजिएगा। एक पुराने फोटो, एक प्रोफेशनल फॉर्मल फोटो एंड आपका एक फॉर्मल फोटो एंड रिपोर्ट दीपंकर का आ गया। मनीषा अपना एक रिपोर्ट भेज देना, अभी तक कितना सेकंड राउंड डिस्कशंस हुआ है, डिटेल्स। रजनी मैम आपने बना लिया बट आपने सेंड नहीं किया, वो आप प्लीज आप भेज दीजिएगा। यस। एंड स्नेहा कहाँ है? निकल गई। स्नेहा ने भेज दिया है। सारसी मैम अभी आपका जरूरत नहीं है। जाहिदा आपका भी, अच्छा स्नेहा है, स्नेहा ने भेज दिया है। सारसी मैम अभी आपका तो 3-4 ही है, अभी आप रहने दीजिए। निकिता तो काम करते नहीं है, रिपोर्ट बनता ही नहीं है उसका, दीपंकर ने भेज दिया। ओके, तो एवरीवन एंजॉय होली। उर्वशी जी आपको सारे डिटेल्स में सेंड कर दूंगा, बट फ्री टाइम में देख लेना। हैप्पी होली एंड प्लीज सेंड
Holi, sir. Thank you. Happy Holi to all. Thank you, sir. Thank you, and please send a formal Bhagwan. And जिनके वोट pending है, please report send कर दीजिए. Okay, thank you. मेरा इंटरव्यू लाइन अप है. मेरा इंटरव्यू लाइन